Resolution means resolve part, that is breaking part of vector. The breaking part of any vector along the given reference line is called resolution. The resolution means breaking part. Breaking part along given line. In any vector, there is magnitude as well as direction. किसी भी वेक्टर को ब्रेक करना या रिजॉल्व पार्ट फाइंड करने का मतलब है उसके डायरेक्शन को ब्रेक नहीं कर सकते, ओनली मैग्नीट्यूड ब्रेक होगा। मीन्स कोई भी वेक्टर का कंपोनेंट या रिजॉल्व पार्ट जनरली स्केलर होता है, लेकिन एक वेक्टर को ब्रेक कर दिया, स्केलर आया, स्केलर को ऐड करने से वेक्टर नहीं मिलेगा। दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ फिजिक्स। अब वेक्टर लाने के लिए कंसेप्ट में इसीलिए माना गया था 3 यूनिट वेक्टर्स अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस x, y and z. The standard unit vector along x, y and z axis is I cap, j cap and k cap. I cap along x axis, j cap along y axis, k cap along z axis. So the resolved part of any vector along the reference axis considered as a vector in terms of I, j and k. But along any general line, it is only a scalar. So the component or resolved part of vector is either a scalar or vector. तो आप कोई भी पूछे कि कंपोनेंट या रिजॉल्व पार्ट क्या होता है वेक्टर का, तो स्केलर भी होता है, वेक्टर भी होता है। किसी भी लाइन के लॉन्ग, जनरल लाइन के लॉन्ग इसे स्केलर मानते हैं, जबकि रेफरेंस एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर एज ए डायरेक्शन मानते हुए इसे वेक्टर कंसीडर किया जाता है। द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर along general line, a scalar, but the component of vector along reference axis it is vector. So the resolved part of vector is either scalar or vector. For finding the resolved part of vector along any given reference line, suppose that we have to given this vector R and we have to find the resolved part along this line and this line, these two perpendicular lines. This vector R making an angle theta with this axis. So the vector which makes an angle with the line whose component along that line in terms of cos theta and their perpendicular component is cos of 90 minus theta, that is sin theta. किसी भी वेक्टर का रिजॉल्व पार्ट एक कंपोनेंट जिस लाइन के साथ वो एंगल बनाएगा वो कंपोनेंट होगा cos थीटा के टर्म में r cos थीटा, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट इसका होगा r sin. These two are scalar component जब तक ये डिफाइन नहीं हो कि x और y एक्सिस। So the x component is r cos theta, y component r sin theta. If these two lines as axis x and y and the vector r making an angle theta with x axis, the component along x axis r axis r cos theta and y along r sin theta. But these two are scalar. इसको अगर वेक्टर बनाना है, यूनिट वेक्टर along x axis is I cap, so multiplied by I. So this is vector rx vector is r cos theta I and ry vector is r sin theta j. This is the vector component. इसको कभी भी इसके फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, लेकिन इसको लिखा जा सकता है। r vector can be written as rx vector plus ry vector.
that is r cos theta I plus r sin theta. This is the component of two vectors along the given line or given a standard axis in terms of a scalar and vector part. Now suppose we have to find the resultant of any vector by component method, by resolved part method. Suppose that a particle starting from this point को और ये मूव कर रहा है इस तरह से, O A B C. Suppose that this is 2 meter, this is 4 meter, this is 2 meter, and we have to find the displacement vector from O to C, that is OC vector. So by triangle law of vector addition or polygon law of vector addition, OC vector can be written as OA vector plus AB vector plus BC vector. The magnitude of this line is 2 meter, this is 4 meter, this is 2 meter. And you have to give this angle also, suppose that this is 45 degree. So first you find this 2 meter in form of vector. Consider this line as x-axis and vertically as y-axis. So the OA vector can be written as 2I cap. AB vector has two components. AB vector, one of the component along x-axis, 4 cos 45 I cap, positive direction, rightward positive. Other part along positive y-axis, that is 4 sin 45 j. This means 4 by root 2. 4 by root 2 का मतलब हुआ 2 root 2 I plus 2 root 2 j. And the third part BC is totally along x-axis, y component 0. So BC vector is 2I cap. As the displacement vector OC in OA vector 2I cap plus AB vector 2 root 2I cap 2 root 2 j cap plus 2I cap. And it is 4I plus 2 root 2I plus 2 root 2j. This equal to 4 plus 2 root 2I plus 2 root 2j. This is displacement vector OC. इस तरह का क्वेश्चन कंपोनेंट मेथड से जब दो से ज्यादा वेक्टर दिया रहे तो इसका रिजल्टेंट या रिजल्टिंग मैग्नीट्यूड पता करते हैं. अब ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड पता करना है तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, इसके लिए रिप्रेजेंटेशन करते हैं किसी भी वेक्टर का एक्स वाई के फॉर्म, एक्स वाई प्लेन में, वाई जेड प्लेन में, जेड एक्स प्लेन में, एक्स वाई जेड प्लेन में. तो आई जे के टर्म में जब वेक्टर को लिखते हैं दिस इज ट्रीटेड एज एक्स, दिस इज एज वाई, तो एक्स आई प्लस वाई जे के फॉर्म में अगर लिखा जाए तो इसके बाद इसका मैग्नीट्यूड पता करेंगे कि ओसी लाइन की लंबाई क्या होगी, इसका डायरेक्शन क्या होगी. Representation of vector in 2D in terms of component I, J and K. First in 2D, a representation of vector in 2D. 2D means XY plane, YZ plane और ZX plane में इसका representation करते हैं. Suppose that two axes x and y and any vector OP represented as vector R and this angle is theta. And suppose the coordinate of P as xy.
by the geometry this OA is X and this AP is Y. In vector form, this is XI cap, this is YJ cap. And by triangle of vector addition, OP vector can be written as OA vector plus AP vector. Same order, opposite order. OP vector is OA vector plus AP vector. OP vector means R vector. OA means XI cap, AP YJ cap. मतलब कोऑर्डिनेट अगर आपको दिया गया है तो उस फॉर्म में वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं. 2 3 कोऑर्डिनेट अगर है 2i प्लस 3j, xy कोऑर्डिनेट xi प्लस yj. अगर ये वेक्टर है मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा. मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे इसका? मैग्नीट्यूड मतलब ओपी लाइन का लेंथ हुआ है. दिस एंगल इज 90 डिग्री. तो बाय पाइथागोरस OP square can be written as OA square plus AP square. That means R square equal to X square plus Y square. So R is under root X square plus Y square. R means mod of vector R, modulus of vector R, modulus of vector of A. Magnitude of vector R हो गया under root X square plus Y square. And for finding the direction, tan theta equal to AP by OA. This is Y by X. So theta is tan inverse Y by X. This gives direction. मतलब कोऑर्डिनेट से दिया हुआ है तो वेक्टर में फॉर्म कर लेंगे. 2 3 कोऑर्डिनेट है 2i प्लस 3j हो गया. उसका मैग्नीट्यूड निकालना है अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर हो गया. डायरेक्शन निकालना है जिसके साथ एंगल तो y कंपोनेंट y x कंपोनेंट x y प्लेन में. अगर ये y के साथ एंगल बनाएगा तो x y y. इस तरह से इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड पता करते हैं. ये हुआ 2D में रिप्रेजेंटेशन. तो कोई भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जैसे अभी ओसी निकाला था समथिंग फॉर्म में i प्लस j के फॉर्म में, तो x के पास जो रोल था x का y का उसको अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कर देंगे. इसका मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, डायरेक्शन मिल जाएगा. 3D प्लेन में इसी को i j के टर्म में लिख देते हैं. 3D रिप्रेजेंटेशन अगर करेंगे तो 3D में 3 एक्सिस हो गया. x है y z, x y z. अब मान लो ये है हमारा ओपी वेक्टर. ओपी इक्वल टू आर वेक्टर एक्स वाई जेड. So this line is parallel to y-axis. This is an x, OA, और यहां से इसको मिला देते OB. ये पार्ट हो गया हमारा x, xi वेक्टर. xi वेक्टर है. सपोज कीजिए ये y, y के पैरेलल एक y होगा इस तरह से. y के पैरेलल y, तो दिस इज yj, सो इट इज yj. xi प्लस yj, ये हो गया xi प्लस yj, और xi प्लस yj पे z के खड़ा रहेगा. ये वेक्टर बन जाएगा z के यहां से. मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3D प्लेन में कह सकते हैं. ऐसा होगा नहीं 2D में, इस तरह से रहेगा. It can be written in terms of x, y, z. Vector r equal to xi plus yj plus zk by vector addition. So the magnitude of this vector is under root x square plus y square plus z square. इस तरह से मैग्नीट्यूड पता करते हैं 3D में. इसका डायरेक्शन पता करने के लिए कोई भी एंगल एक्स वाई के साथ, वाई जेड के साथ, जेड एक्स के साथ हम निकाल सकते हैं, जो भी निकालना होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. तो इस तरह से 2D और 3D में इसका रिप्रेजेंटेशन. आफ्टर दैट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर. मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर. Multiplication of vector. मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे दो तरह का कंसीडर करते हैं वेक्टर में.
एक स्केलर मल्टीप्लीकेशन, स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर मल्टीप्लीकेशन, वेक्टर प्रोडक्ट। अलजेब्रा में इनका कोई अलग मीनिंग नहीं होता है। अगर मान लो ए और बी दो क्वांटिटी है, इसको ऐसे लिखे तब भी ए इंटू बी है, ये भी ए इंटू बी है, बट इन सेंस ऑफ वेक्टर ये दोनों का अलग अलग मीनिंग। ये डॉट प्रोडक्ट कहलाएगा, ये क्रॉस प्रोडक्ट कहलाएगा। इसको पढ़ेंगे ए डॉट बी, इसको पढ़ेंगे ए क्रॉस। डॉट का मतलब स्केलर रिजल्ट होगा और क्रॉस का मतलब वेक्टर रिजल्ट होगा। अगर दो वेक्टर के मल्टीप्लीकेशन का रिजल्ट a scalar है, then it is called a scalar or dot product. And if the result of multiplication of two vectors is vector quantity, then it considered as vector product or cross product. तो दो टाइप का प्रोडक्ट हो गया, टू वेक्टर्स का, इसको कहेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। फर्स्ट a scalar or dot product, a scalar or dot product. If result of multiplication of two vector is a scalar physical quantity, the resulting product is a scalar product of dot product. Suppose that we have to given two vector, A vector and B vector, and angle between these two is theta. So the dot product of these two vectors is A dot B, and this is mod A mod B cos theta. Mod A means simply A B cos. A dot B. A is magnitude, B magnitude, cos theta numerical value, मतलब सिर्फ स्केलर आ रहा है, यहाँ पे वेक्टर नाम का कोई चीज नहीं होगा, ये रिजल्ट स्केलर हुआ। अगर रिप्लेस करने इसको, सपोज दैट B dot A, B dot A is simply BA cos theta, means A dot B is equal to B dot A and this is AB cos theta. दोनों सेम होगा. By interchanging the vector scalar product remains same. कोई चेंजिंग नहीं होगा. A dot B is B dot A. That means ये commutative law को follow कर रहा है. Dot product follows commutative law. Commutative law इसको follow करेगा. If theta is 0 degree, cos 01, A dot B equal to AB. And theta 90 degree, theta 90 means both are perpendicular. Theta 90, A dot B, cos 90 0, A dot B 0. This is the condition of perpendicularity. If you have to prove two vectors are perpendicular or not, if you have to prove the two vectors are perpendicular, then first you find the dot product of two vectors. If dot product is 0, then both are perpendicular to each other. So this is the condition of perpendicularity. If dot product of two vectors is 0, then the two vectors are perpendicular. Condition of perpendicularity. Perpendicularity. So this is the condition of two perpendicular vector. थीटा 0 पे ये मैक्सिमम रिजल्ट हो गया, cos 0 सबसे ज्यादा होगा तो AB के बराबर होगा. If two are equal vectors, so dot product of two equal vectors, that is A dot A means A cos 0 is 1, that is A square. Dot product of two equal vector is a square of their magnitude. If they are unique vectors, A dot B, both are unique vector. Magnitude of A is 1, magnitude of B is 1. Any angle between A and B cos theta. So result is only in terms of cosine cos theta.
And if these two unit vectors are equal, suppose that A cap dot A cap 1 1 and A और A के बीच का angle 0, cos 0 1, so this is 1. The dot product of two equal unit vector is 1. Now the dot product in terms of a standard unit vector I, J and K. I, J, K का dot product. Dot product of I cap, J cap and K cap. Similar, I dot I 1 1 I और I के बीच का एंगल cos 0 means 1. Similarly, J dot J 1 K dot K 1. Therefore, I dot I J dot J K dot K, this is 1. और अगर ये डिफरेंट हो, I dot J 1 1 I J X Y both are perpendicular. So cos 90 and cos 90 is 0. I dot J 0 J dot K 0 K dot I 0. By interchanging the place reverse भी करेंगे तो J dot I भी 0, K dot J 0, K dot I 0. रिप्लेसिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है बिकॉज कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है. तो डिफरेंट जो होगा परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर उसका डॉट प्रोडक्ट 0, सेम का 1. इसका यूज डॉट प्रोडक्ट का बेसिकली करते हैं दो वेक्टर के बीच का एंगल पता करने में, एंगल फाइंड करने में. फर्स्ट आई जे के टर्म में उसका डॉट प्रोडक्ट पता कर लेंगे, मॉडुलस पता कर लेंगे ए का बी का, फिर एंगल निकाल लेंगे. सच मान लो इस तरह का है. We have to give a vector A equal to A1I cap plus A2J cap plus A3K cap, and vector B equal to B1I cap plus B2J cap plus B3K cap. Therefore, A dot B फर्स्ट लिखो इस तरह से A1I A2J A3K dot B1I B2J B3K. I dot I 1, so it is A1 B1. I dot J 0, I dot K 0, J dot I 0, J dot J 1, A2 B2, J dot K 0, K dot I 0, K dot J 0, K dot K 1, A3 B3. So the result of dot product is A1 B1 plus A2 B2 plus A3 B3. And if we have to find the angle between vector A and vector B, theta. So the magnitude of A, your modulus of A is under root x y z, मतलब x square plus y square plus z square, A1 square plus A2 square plus A3 square, and mod of B under root B1 square plus B2 square plus B3 square. Therefore, cos theta can be written as A dot B divided by mod A mod B, that is A1 B1 plus A2 B2 plus A3 B3 divided by under root A1 square plus A2 square plus A3 square, B1 square plus B2 square plus B3 square. And this is the final result for angle theta. Now, one thinks the meaning of dot product.
क्या मतलब है इसका डॉट प्रोडक्ट का, फिजिक्स को क्या मिलेगा इससे, मैथमेटिक्स को क्या मिल रहा है. So there are two types of meaning, geometrical meaning and physical meaning. तो फिजिकल मीनिंग तो सो सिंपल है कि डॉट प्रोडक्ट से जितना फिजिक्स में स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है उसका डेफिनेशन मिलेगा. एंड ज्योमेट्रिकली ये क्या प्रोवाइड कर रहा है. ज्योमेट्रिकली देखते हैं आप ये क्या दे रहे हैं. ज्योमेट्रिकली ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन या ज्योमेट्रिकल मीनिंग कर सकते हैं. ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट. ज्योमेट्रिकल मीनिंग कैसे पता करेंगे इसका. सपोज दैट ए और बी दो वेक्टर दिया, ए एंड बी आर टू वेक्टर एट एन एंगल थीटा. दिस इज like OA vector and this is OB vector. So draw the perpendicular from here to here, BM, and A से AM, perpendicular. This is perpendicular. So OM is called projected part of OB, projected part of vector B along vector A. And this OM, यहाँ पे काट रहा है इसको, so OM is called projected part of vector OM, means projected part of vector A along vector B. तो इसको देखते हैं डॉट प्रोडक्ट के टर्म में कैसे लिखेंगे. OM, this is projection of vector B on vector A. जो बच्चे है इसका अगर ये डॉट प्रोडक्ट के टर्म में आ गया. And ON, this is projection of vector A on vector B. And from figure, triangle OMB cos theta can be written as OM by OB, OM by B. OM is B cos theta. और अभी पढ़ा था A dot B AB cos theta. So B cos theta can be written as A dot B by modulus of A. मतलब प्रोजेक्शन को डॉट प्रोडक्ट के टर्म में चेंज कर लिया. सिमिलरली ट्रायंगल ONA cos theta equal to ON by OA, ON by A, ON equal to A cos theta. This is A dot B by modulus of A. OM and ON are projection of vectors. Projection of vector B on A is OM. Projection of vector A on B is OM. And projection can be represented in terms of dot product. अगर A का प्रोजेक्शन पता करना है B पे, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल करके A के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे. अगर B का प्रोजेक्शन पता करना है A पे, B का प्रोजेक्शन पता करना है A पे, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल के A से डिवाइड करेंगे. अगर A का प्रोजेक्शन पता करना है B पे, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करके B के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे. दिस इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग. मतलब ज्योमेट्रिकली डॉट प्रोडक्ट क्या प्रोवाइड कर रहा है. प्रोजेक्शन ऑफ एनी वेक्टर अलोंग अदर वेक्टर. किसी भी एक वेक्टर का प्रोजेक्शन देता है दूसरे वेक्टर के अलोंग. ये इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है. एंड फिजिकली जितना फिजिक्स में डिफिनीशन है, फिजिकल क्वांटिटी जो स्केलर है उसको दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट के टर्म में डिफाइन किया जा सकता है. ये इसका फिजिकल मीनिंग होगा. फिजिकल मीनिंग फिजिकल मीनिंग है राइट. एनी वेक्टर, सॉरी, एनी फिजिकल क्वांटिटी that is a scalar, any a scalar physical quantity is defined in terms of dot product of two vectors. For example, we have to find the work done. Work is dot product of force vector and displacement vector. We have to find the potential such as gravitational potential. So gravitational potential is gravitational field and displacement का product.
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोजीशन वेक्टर का प्रोडक्ट, जितना भी स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम डिफाइन करते हैं डॉट प्रोडक्ट के टर्म में। ठीक है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा कोई ना कोई स्केलर फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट करेगा। ये हुआ डॉट प्रोडक्ट का। अब सेकेंड प्रोडक्ट है क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। सेकेंड इज वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट, if the result of multiplication, right, if the result of multiplication of two vector is vector physical quantity, it represented as cross or vector product. Suppose कीजिए we are to given two vectors, यहाँ result vector मिलना चाहिए, a vector b vector, this angle is theta and rotation from a to b, a cross b निकालेंगे तो a से b की तरफ, b क्रॉस a निकालेंगे तो b से a की तरफ, a b थीटा, b क्रॉस a पता करना है, ऐसे रोटेशन हो गया क्लॉकवाइज, a to b एंटी क्लॉकवाइज। The cross product of two vector a cross b can be written as mod a मतलब a b, और यहाँ sin थीटा एज्यूम करते हैं, एजम्पशन है तो प्रूफ नहीं इसको। अब यहाँ पे ये स्केलर मिल रहा है लेकिन रिजल्ट हमको चाहिए वेक्टर, तो वेक्टर बनाने के लिए यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर लगा देते हैं, दिस यूनिट वेक्टर n, यही डायरेक्शन बता देगा, इतना पार्ट स्केलर था इसको लगाने से वेक्टर बन गया क्योंकि रिजल्ट हमको वेक्टर चाहिए। अब यूनिट वेक्टर n क्या है? यूनिट वेक्टर n रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, ए का अपना डायरेक्शन, बी का अपना डायरेक्शन, तो ए क्रॉस बी का भी डायरेक्शन चाहिए, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने का काम करता है यूनिट वेक्टर n। यूनिट वेक्टर n का डायरेक्शन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द पेपर होगा। यूनिट वेक्टर n रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, मींस ए क्रॉस बी का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा, जो यूनिट वेक्टर n का डायरेक्शन होगा वही a क्रॉस b का डायरेक्शन होगा। अब यूनिट वेक्टर n का डायरेक्शन हमेशा प्लेन ऑफ द पेपर पे परपेंडिकुलर, a और b जिस प्लेन में है उस पे परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलरली दो पॉसिबल डायरेक्शन है, आइदर आउटवर्ड टू द प्लेन और इनवर्ड टू द प्लेन। ठीक है, आइदर आउटवर्ड और इनवर्ड। आउटवर्ड और इनवर्ड के लिए कंसेप्ट से कभी इतना ही जानना है कि अगर एंगल का रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है तो यूनिट वेक्टर n जो होगा वो आउटवर्ड टू द प्लेन होगा, और अगर इसका रोटेशन क्लॉकवाइज हो रहा है तो यूनिट वेक्टर n का डायरेक्शन इनवर्ड टू द प्लेन होगा, इनसाइड टू द प्लेन। मतलब n इज यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ प्लेन ऑफ both vector A and vector B, and this represents direction of vector A cross vector B. So A cross B का डायरेक्शन वही होगा जो यूनिट वेक्टर n का डायरेक्शन होगा। So A cross B is vector perpendicular to both A and B, A और B दोनों पे परपेंडिकुलर होगा। अगर थीटा एंटी क्लॉक है यूनिट वेक्टर n आउटवर्ड होगा, मतलब a क्रॉस b का डायरेक्शन भी आउटवर्ड टू द प्लेन होगा। अगर ये क्लॉकवाइज है, थीटा क्लॉकवाइज, यूनिट वेक्टर n इनवर्ड टू द प्लेन होगा, इनवर्ड। जो इसका डायरेक्शन होगा वही a क्रॉस b का डायरेक्शन होगा। मतलब कोई क्वेश्चन दे, पूछे आपसे कि a और b दो वेक्टर दे दे, कहे कि ऐसा वेक्टर बताओ जो a और b दोनों पे परपेंडिकुलर हो, तो यू हैव टू फाइंड ओनली a क्रॉस b। a क्रॉस b is a vector perpendicular to both the plane of vector a and vector b। ठीक है, now if the place interchanges, a की जगह पे अगर b कर दे, this becomes b क्रॉस a and b क्रॉस a, ये भी sin थीटा तो वही रहेगा, बट यूनिट वेक्टर n का डायरेक्शन चेंज कर जाएगा, so it becomes नेगेटिव, बिकॉज a क्रॉस b अगर यहाँ एंटी क्लॉकवाइज है तो b क्रॉस a क्लॉकवाइज हो गया।
तो दिस बिकम्स नेगेटिव। इसका मतलब ये हुआ ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, बिकॉज साइन चेंज कर रहा है, डायरेक्शन चेंज करने से वेक्टर का सिग्निफिकेंस बदल जाता है। यहां पे दोनों बराबर नहीं होगा। ए क्रॉस बी इज नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, मीन्स कम्यूटेटिव लॉ को भी नहीं करेगा। ये डॉट प्रोडक्ट को भी कर रहा था, ये फॉलो नहीं करता है, नॉट फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ, क्योंकि सिग्निफिकेंस बदल गया वेक्टर का, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करेगा। अगर यहां पे थीटा 0 हो जाए तो थीटा 0 पे ए क्रॉस बी 0 हो जाएगा, बिकॉज साइन 0 0 होता है, 90 पे मैक्सिमम होगा। अगर ये दोनों वेक्टर इक्वल हो जाए तब भी इसका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। ए क्रॉस ए और ए के बीच का एंगल 0, तो फिर 0 हो गया, तो 0 वेक्टर के सेंस में आ जाएगा, फिर ये 0 हो गया। दो क्वेश्चन यहां पता करना होगा कि वैसा वेक्टर फाइंड करो जो ए और बी दोनों पे परपेंडिकुलर हो। तो फर्स्ट फाइंड ए क्रॉस बी। दूसरा ये पता करना हो सकता है कि वो यूनिट वेक्टर बताओ जो गिवन वेक्टर पे परपेंडिकुलर है। तो ए और बी दोनों पे परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर अगर पता करना है तो ए क्रॉस बी तो वेक्टर हो गया परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। मतलब यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी इज ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी। ये अगर पता कर लेंगे तो दिस इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। ए क्रॉस बी पता करेंगे तो वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, जनरल वेक्टर। ठीक है, ये हुआ। अब यूनिट वेक्टर अगर आ जाए आई जे के टर्म में, उसके टर्म में लेंगे तब क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या होगा। जैसे डॉट में सेम का 1 हो रहा था, डिफरेंट का 0 था, यहां पे तो वेक्टर सेंस में आना है तो क्या आएगा, सिमिलर का और डिफरेंट का। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आई कैप जे कैप एंड ए कैप। आई जे कैप का क्रॉस प्रोडक्ट आई क्रॉस आई, आई आई के बीच का एंगल 0, सो 0, दिस इज जे क्रॉस जे, this is k cross k, all are 0. But I cross j 1 1 and unit vector I और j के बीच का एंगल 90 डिग्री sin 91, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ a and b, I और j पे परपेंडिकुलर स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर k, so this result is k, I cross j k, j cross k I, k cross I j, by reversal j cross I minus k, a cross j minus I cross k minus a, I j k, this is called right handed system, this is right handed system, और उसका रिवर्सल है, this is called left handed system, ये left handed system है। इस फॉर्म को लगा के आईजे के टर्म में दिया रहेगा तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट हम फाइंड कर सकते हैं आईजे ए के टर्म में। लेकिन इस मेथड को याद रखना बड़ा मुश्किल है, कौन सा नेगेटिव कौन सा पॉजिटिव याद नहीं रह सकता है। इसके लिए अगर इस फॉर्म में ए और बी दिया हुआ है तो क्रॉस प्रोडक्ट पता करने के लिए एक दूसरा मेथड अडॉप्ट करेंगे जिसमें हमको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आई क्रॉस जे पॉजिटिव होता है या जे क्रॉस आई पॉजिटिव होता है। वो मेथड है डिटर्मिनेंट मेथड। अल्टरनेट मेथड के लिए सपोज दैट वी हैव टू गिवन वेक्टर ए इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3k एंड b इक्वल टू b1i प्लस b2j प्लस b3k एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्रॉस b। a क्रॉस b पता करने के लिए देखो पहले दो पैरेलल लाइन कर दीजिए। यहां पे एक रो में आई जे के, दूसरा में फर्स्ट का कोफिशिएंट a1 a2 a3, b1 b2 b3। अब क्या करना है, पहले यहां पे आई लिखो आई, एक स्टेप और आगे देखो समझने के लिए, वैसे डायरेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आई के सामने सामने रो और कॉलम में भूल जाइए कुछ देर के लिए और बाकी जो बचा उसको लिख दीजिए a2 a3 b2 b3 और यहां पे फिर प्लस जे, इसके सामने सामने को डाउन a1 a3
B1 B3 फिर K कैप A1 A2 B1 B2। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। I पहले लेफ्ट से A2 B3 माइनस A2 B3। अब इसमें उल्टा, क्योंकि डिटरमिनेंट के नेगेटिव प्लेस होता है, तो इसमें राइट से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट माइनस लेफ्ट, क्योंकि प्लस ही रखा है हमने, साइन चेंज नहीं किया है, इसलिए उल्टा कर देंगे। A3 B1 माइनस A1 B3 प्लस K करेंगे A1 B2 फिर लेफ्ट से माइनस A2 B1 पॉजिटिव हो गया। इसमें I क्रॉस J क्रॉस K वाली फॉर्मूला की जरूरत नहीं पड़ी और ये सिंपली बन गया आपका इस तरह से, लेफ्ट माइनस राइट, राइट माइनस लेफ्ट, लेफ्ट माइनस राइट, लेफ्ट राइट, इसी को याद रखना है। इसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो कोई भी यूनिट वेक्टर निकालना हो परपेंडिकुलर या वेक्टर निकालना हो परपेंडिकुलर, मतलब ए क्रॉस बी पता करना है, और ए क्रॉस बी अगर पता करना है तो ये मेथड अडॉप्ट करेंगे। अब इसके बाद इनका ज्योमेट्रिकल मीनिंग और फिजिकल मीनिंग क्या क्या है। ज्योमेट्रिकली क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो क्या देगा, फिजिकली क्या देगा। फिजिकली वही देगा जैसे डॉट प्रोडक्ट में स्केलर फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन मिला, तो यहाँ पे फिजिकल मीनिंग में वेक्टर क्वांटिटी का मिलेगा डेफिनेशन। जितना वेक्टर क्वांटिटी फिजिक्स के अंदर है सबको दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के टर्म में डिफाइन कर सकते हैं। जैसे टॉर्क है आर क्रॉस एफ, पोजिशन वेक्टर, रेडियल वेक्टर, फोर्स वेक्टर, एंगुलर मोमेंटम आर क्रॉस पी, बहुत सारा क्वांटिटी है जो इसके टर्म में हम पता कर सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के टर्म में। जितना वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है तो किसी न किसी वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के टर्म में निकाला जा सकता है उसको। अब इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, एक्चुअली ज्योमेट्रिकल मीनिंग मॉड ऑफ ए क्रॉस बी हो या बी क्रॉस ए हो, दोनों का मॉड बराबर होगा, सिर्फ डायरेक्शन यूनिट वेक्टर के चलते उल्टा हो रहा है, मॉड बराबर है। If you have to given A and B as a adjacent sides of parallelogram, then you find mod of A cross B. So mod of A cross B can be written as AB sin theta, and this is 2 into half AB sin theta, and 2 into half AB sin theta is what? If AB is given as a side of triangle and theta is angle between 2 times half AB sin theta. And this half AB sin theta is area of this triangle, and 2 times area of triangle is area of parallelogram. So this is area of parallelogram. Geometrically cross product क्या देगा, पैरेललोग्राम का एरिया देगा, जहां दोनों वेक्टर पैरेललोग्राम के दो साइड को रिप्रेजेंट करेगा। तो पैरेललोग्राम का एरिया अगर निकालना है तो क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के उसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, जहां ये और भी दो वेक्टर साइड को रिप्रेजेंट करेगा। If side is not given, you have to give two vector as diagonal, D1 and D2 vector as diagonal. तो D1 D2 अगर diagonal है, उस सेंस में half mod D1 cross D2, this gives area of parallelogram. Area of parallelogram in terms of diagonal half D1 cross D2. This is the meaning of ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। एंड बहुत सिंपल सा चीज एक है जो ट्रिपल प्रोडक्ट में हम लोग चलते हैं। तो जिस तरह से वेक्टर प्रोडक्ट दो तरह का हुआ, एक स्केलर प्रोडक्ट, दूसरा वेक्टर प्रोडक्ट, तो ट्रिपल प्रोडक्ट भी दो तरह का होगा। इस प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स, first a scalar triple product, तीन वेक्टर का प्रोडक्ट होगा। इसको लिख सकते हैं इस फॉर्म में, A डॉट B क्रॉस C या B डॉट 3 क्रॉस A या C dot A cross B, and all are same because result is finally scalar, और स्केलर रिजल्ट है तो प्लेस को इंटरचेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है इसका कि थ्री वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अपने प्लेस पे डिपेंड नहीं करता है, प्लेस से इंडिपेंडेंट है। प्लेस को इंटरचेंज करने से भी टोटल वैल्यू इनका सेम रहेगा। और
और दूसरा बात ये भी रूल में बताता है कि आउट ऑफ 3 वेक्टर इफ 2 आर इक्वल, तो बिना बनाए बिना कुछ कैलकुलेशन किए उसका रिजल्ट 0 लिख देगा, निकाल के भी आप देख सकते हैं। If out of 3 vectors 2 are equal, suppose that A dot A cross C, कोई भी दो अगर इक्वल हो जाती है 0, ठीक है। और A B C यहाँ स्केलर क्वांटिटी 3D में मिल रहा है, तो 3D वॉल्यूम रिप्रेजेंट करता है, वॉल्यूम स्केलर होता है। तो 3 वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमेशा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड या वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड को रिप्रेजेंट करता है। If you have to find the value volume of parallelopaid या वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, as A, B and C has 3 sides, A dot B cross C या B dot C cross A या C dot A cross B, this gives volume of parallelopaid. So this is simply product of 3 vectors का scalar triple product. Now vector triple product is nothing, उसका कोई physical meaning नहीं है, यूं ही सवाल होता है, क्वेश्चन आएगा आपको टाइम टेकिंग के लिए। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का कोई फिजिकल मीनिंग नहीं होता, बिकॉज 3D जो है वो वेक्टर नहीं होता है। 3D में 3 डायमेंशन अगर आ गया तो स्केलर रिप्रेजेंट करता है, इसलिए वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का कोई खास मीनिंग नहीं है, उसको सिर्फ इस तरह से लिखते हैं, सिर्फ कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट इट कैन बी रिटन एज A क्रॉस B क्रॉस C, B क्रॉस C क्रॉस A, C क्रॉस A क्रॉस B, और इनके प्लेस को इंटरचेंज करने पे कभी सेम नहीं होगा, बिकॉज डायरेक्शन है यहाँ पे, इसलिए तीनों इक्वल कभी नहीं होगा। A क्रॉस B क्रॉस C नॉट इक्वल टू B क्रॉस C क्रॉस A नॉट इक्वल टू C क्रॉस A क्रॉस B, सब अलग अलग हो जाएगा, बिकॉज साइन अलग होगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, साइन अलग हो जाएगा, तो सब अलग होगा। और ज्योमेट्रिकली कुछ भी नहीं प्रोवाइड करेगा, बिकॉज 3D ज्योमेट्री जो है वो स्केलर होता है, तो यहां से कोई भी ज्योमेट्रिकल मीनिंग नहीं मिलने वाला है इसका। अब ये थोड़ा टफ काम हो गया, 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए पहले ये निकालो दोनों का क्रॉस, फिर डिटरमिनेंट लगाओ, ये लगाओ। इसको सिंप्लिसिटी के लिए, थोड़ा कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो इसको ऐसे कर लेते हैं हम। A क्रॉस B कैन बी रिटन एज A क्रॉस B क्रॉस C, दिस कैन बी रिटन एज, इसको सिंपली ऐसा लिखते हैं, A और फर्स्ट और लास्ट का डॉट प्रोडक्ट, A डॉट C और B से जनरल मल्टीप्लिकेशन माइनस कर देते हैं, A डॉट B C, बस सिंपली ऐसा, फर्स्ट लास्ट फिर फर्स्ट सेकंड। अगर B क्रॉस C क्रॉस A, दिस इज B डॉट A C माइनस B डॉट C A, ऐसे करते हैं, C क्रॉस A क्रॉस B means C dot B A minus C dot A B। अब यहां से क्या करना है, कोई क्रॉस प्रोडक्ट का लफड़ा नहीं है, यहां से डॉट प्रोडक्ट निकाल दिया, जनरल मल्टीप्लिकेशन किया, फाइनल रिजल्ट वेक्टर मिल गया, सो सिंपल, ठीक है।